ज्यादा ब्यूटीफुल कैटरेक्ट नहीं होता आई थिंक, and this is containing the multiple crystals of many colors. So this is actually what you called as the Christmas tree cataract. This is actually the Christmas tree cataract. Christmas tree जैसा होता है. Okay, this is actually the Christmas tree cataract, multiple chromatic colored crystals, and this is not found on 25th of December. क्यों कहते हैं Christmas tree cataract? Because of the multiple colors. Again, you can get an integrated question because it is found in the myotonic dystrophy. तो remember your medicine. Medicine में क्या होता है? We are having the facial baldness, frontal baldness. We are having Hashid facies. Hashid facies का मतलब क्या होता है? Bitemporal bossing हो गया, frontal baldness हो गया, heart conduction defects हो गए, cataract also. So this is Christmas tree cataract. Now Christmas tree cataract is also a posterior subcapsular cataract. So obviously it will be visual deteriorating. Yes, visual deteriorating भी होगा. Very good. So it will be this. Now once we have done all types of cataract, coming to the treatment. Treatment बहुत simple है. We are going to do the cataract surgeries, ECCE with the PCIOL implantation. So whenever we are doing the cataract surgery, we are going to do the ECC with the PCIOL implantation. PCIOL, PC here will be the posterior capsule. Posterior capsule is the best site. It is the best site for the IOL. Another important question, ECC means extracapsular. So extracapsular mein, that means you are not removing the capsule. Only then I can place the IOL over the posterior capsule because I am not removing. तो एक बहुत funny incidents बताती हूँ कि always we think कि ICCE में we will have more complications in comparison to ECCE. तो there was a question कि posterior capsular opacification PCO will be more common in. तो उस पे भी students बात कि ICC. बेटा ICCE में तो we are actually removing the posterior capsule. So how can I have the opacification of the posterior capsule? तो थोड़ा सा I know some anxiety होती है, numbness हो जाती है, लेकिन थोड़ा सा common sense भी लेके जाना है और वहां पर यूज करना है, ठीक है ना. नाउ सी दिस IOL. IOL के टू पार्ट्स हैं. यू कैन सी दिस ऑप्टिक्स एरिया एंड दी हैप्टिक्स एरिया. दैट्स अ ब्यूटीफुल क्रिसमस. यस, ब्यूटीफुल क्रिसमस ट्री, मतलब उसको देखते क्रिसमस वाली फील भी आ जाती है. तो वी हैव द ECC विद द PCIOL इम्प्लांटेशन. वी आर प्लेसिंग द IOL ओवर द पोस्टीरियर कैप्सूल. दैट इज द बेस्ट साइट, ठीक है. तो एक बार इंसिजन हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं. ICCE में वी आर गिविंग 10 to 12 mm हो गया. ECC में 7 to 8 mm. Then SICS में 5 to 7 mm. And the king of cataract surgery. King of cataract surgery will be the phacoemulsification. The king of the cataract surgery is the phacoemulsification. इसमें कितना incision देते हैं? 3 to 3.5 mm. 3 to 3.5 mm. And this is a very small. तो क्योंकि very small है, therefore it is actually the suture-less surgery. तो if the question comes, which is the suture-less surgery? Suture-less surgery is the phacoemulsification. Very small incision. तो obviously पूरा IOL नहीं जा सकता. आप क्या करें? फोल्ड करके ले जा सकते हैं, रोल करके ले जा सकते हैं. तो फोल्ड करके ले जा सकते हैं तो फोल्डेबल IOL हो गया, रोल करके ले जा सकते हैं तो रोलेबल IOL हो गया. तो phacoemulsification में वी आर यूजिंग द फोल्डेबल IOL, रोलेबल. आपकी लगेज में से सामान नहीं आता, हम क्या करते हैं? फोल्ड करके ले जाते हैं, रोल करके साइड में रख देते हैं. तो फोल्डेबल IOL, रोलेबल IOL हो गया. यस, एग्जाम वाला पिक वो लुक लाइक आ शो का ट्री हो सकता है, लेकिन बस ट्री जैसा लगे तो समझ जाना, ठीक है ना. सो दीज आर ऑल द टाइप्स ऑफ सर्जरीज. नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन क्या है? जहां पर भी सर्जरी होती है इंडिया में वहां पर इन्फेक्शन हो सकता है. और अगर इन्फेक्शन हो जाए बेटा तो क्या हो सकता है? वी कैन हैव एक्सुडेट्स. एक्सुडेट्स मतलब पस. सो वी कैन हैव हाइपोपियन. एंड दिस पिक्चर ऑल्सो वी गॉट इन इनसेट नवंबर 2022 जिसमें देयर वाज अ फिश टेल इंजुरी. अब फिश टेल इंजुरी से भी पस हो सकता है. दैट वाज अ फंगल कॉर्नियल अल्सर. कैटरेक्ट सर्जरी के इन्फेक्शन से भी वी कैन गेट अ पस. दैट इज कॉल्ड एज अ हाइपोपियन. तो योर डायग्नोसिस रिमेन्स द सेम. Here it is endophthalmitis due to which we are having hypopyon. वहां पर we were having corneal ulcer, but the picture will remain same. Hypopyon and endophthalmitis. This is the worst thing.
या ना, मोस्ट सीवियर थिंग, मोस्ट सीवियर कॉम्प्लिकेशन जो हो सकता है. एंड सी देयर इज अगेन अ PYQ, लेट ऑनसेट एंडोफ्थेल्माइटिस इज कॉज्ड बाय. लेट ऑनसेट एंडोफ्थेल्माइटिस किससे होता है? तो लेट ऑनसेट एंडोफ्थेल्माइटिस होता है बाय द प्रोपियोनिबैक्टीरियम एक्नेस. एंड इफ दे आस्क यू द अर्ली ऑनसेट, then this is caused by the staph epidermidis. This is caused by the staph epidermidis. The most important complication of the cataract surgery, जो सबसे बुरा हो सकता है for the patient as well as surgeon, is the endophthalmitis. End of ophthalmitis मतलब end of eye है, you don't have the vision, and end of the career of the ophthalmologist also because the patient does not have vision. तो end है, इसीलिए most severe complication है. You can remember it like this. ठीक है ना, याद रखोगे. Now ये देखो, ब्यूटिफुल डी शेप प्यूपिल. तो डी शेप प्यूपिल कहाँ मिलती है? अगेन अ PYQ. ये सारे PYQs है और मैं लिंक कर रही हूं इसे फनी इंसिडेंट से, सो दैट दे कैन क्लिक इन योर माइंड. जो फनी चीज होती है रिलेट मतलब होती है, कुछ एक्सेप्शनल होती है, हटके होती है, वो चीजें हमको याद आ जाती है. तो उस तरह से हम इसको लिंक करके पढ़ते हैं. तो ये देखो, वी आर हैविंग द डिटैचमेंट ऑफ द आइरिस. तो जब डिटैचमेंट ऑफ द आइरिस होता है उसको हम क्या बोल देते हैं? दिस इज कॉल्ड एज आइरिडोडायलिसिस. ब्यूटीफुल ऑडियंस, मतलब मेरे कहने से पहले ही डायग्नोसिस आ जा रही है. आइरिडोडायलिसिस है. आइरिडोडायलिसिस में वी आर हैविंग द डी शेप प्यूपिल. वी आर हैविंग द डी शेप प्यूपिल. सो दिस इज एक्चुअली आइरिडोडायलिसिस along with the D-shaped pupil. Very very important. अब ये देखो क्या दिख रहा है? This can be iris prolapse. So we can also have the iris prolapse. Prolapse of the iris भी हो सकता है. कब होगा? कोई धक्का कब मारेगा? जब ज्यादा प्रेशर लगाएगा. धक्का कब मार सकते हो? जब प्रेशर लगाओगे. तो कौन सा प्रेशर हो गया? IOP. तो when we have the raised IOP, we can have the iris prolapse. ठीक है, इसको ऐसे याद रखना है. ये देखो, इस बार ये आएगा बिकॉज लास्ट टाइम देयर वाज अ हाइपोपियन. तो इस बार जो क्वेश्चन आएगा 2023 में वो ये आएगा. व्हाट कैन यू सी हियर? यू कैन सी ब्लड. तो ये हो जाएगा ब्लड इन दी एंटीरियर चेम्बर. फेस्टून नहीं है बेटा, ये ब्लड है. ब्लड देख रहे हो? ब्लड है इन दी एंटीरियर चेम्बर. दिस इज कॉल्ड एज अ हाइफीमा. दिस इज कॉल्ड एज हाइफीमा. हाइफीमा क्या है? मोस्ट कॉमन अर्ली पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन. मतलब आपने सर्जरी करी, अगले दिन पट्टी खोली, सबसे पहले क्या दिख सकता है? हाइफीमा. सबसे सीवियर क्या हो सकता है? एंडोफ्थेल्माइटिस. ठीक है ना, मोस्ट कॉमन अर्ली हो गया एंड मोस्ट सीवियर भी हो गया. अब लेट बाद में दोबारा आ गया. पेशेंट की सर्जरी हो गई, अगेन ही हैज कम विद डिमिनिशन ऑफ विजन. भाई अब क्या हो गया? अब PCO हो सकता है, पोस्टीरियर कैप्सुलर ओपेसिफिकेशन. हमने छोड़ दिया था पोस्टीरियर कैप्सूल. जो पोस्टीरियर कैप्सूल वी हैड लेफ्ट, नाउ इवन दैट कैन ओपेसिफाई. अब बच्चों को हमेशा एक कंफ्यूजन होता है कि अगर हम उसमें ओपनिंग दे देंगे, ठीक है, तो IOL गिर तो नहीं जाएगा? बेटा IOL नहीं गिरेगा. ये देखो, ये इसका ऑप्टिक्स पार्ट है. वी हैव द सेंट्रल ऑप्टिक्स पार्ट एंड हैप्टिक्स होंगे. हैप्टिक्स आर इन द पेरिफेरी. सो इफ आई एम गिविंग ओपनिंग इन द सेंटर, ठीक है ना, तो IOL विल नॉट फॉल एंड देयर विल बी नो विट्रियस लॉस ऑल्सो. सो वी विल गिव जस्ट अ स्मॉल ओपनिंग इन द सेंटर. तो स्मॉल ओपनिंग इन द सेंटर आई कैन गिव विद द लेजर. कौन सा लेजर है? राइट इट इन द कॉमेंट सेक्शन. चलो बताओ जल्दी से दैट which one we are going to use. So we are going to use a very very important laser. This is ND-YAG laser हो गया. ND-YAG laser 1064 nanometer. Full form of ND-YAG, wavelength of ND-YAG and unit of ND-YAG. Mechanism of action of ND-YAG. Mechanism of action क्या होता है? It is photo disruption. It is the photo disruption. मतलब it is creating the opening. Photo disruption है. Wavelength and its unit is again very very important. ये देखो, this is AIMS 2017. AIMS 2017 है. ये देखो, तो वी आर हैविंग सो मेनी वैक्यूलेटेड सेल्स है. यहाँ पे छोटे छोटे जेल्स है, क्या जैसे पर्ल्स होते हैं, इसीलिए इनको क्या बोल देते हैं? एल्शिंग्स पर्ल. Therefore, this is called as Elshing's pearl. So we are having, एक तो रिंग जैसी अपीयरेंस थी, जिसमें रिंग जैसी अपीयरेंस है. ये सोमरिंग रिंग कैटरेक्ट है और जहां पे छोटे छोटे पर्ल जैसे दिखते हैं. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन फोटो डिस्ट्रप्शन है. वेरी करेक्ट है. मोटो क्या? मोटो नहीं फोटो. ये फोटो डिस्रप्शन है. ठीक है.